Let's get started with the Pitch Fest episode 2. My name is Adinata. I'm the content strategist at Change Mechanics, and I'm the one who's running Pitch Fest. Welcome, everyone. Let me start with the introduction of Startup.pk. Okay, Startup.pk is a professional platform for entrepreneurs, startup founders, and students who are looking for starting their own businesses, and all the ecosystem players who are there to support them. We empower entrepreneurs using knowledge, information, and various programs. And one of such program is Pitch Fest. Pitch Fest is a virtual pitching program in which startups will get to pitch their idea to either idea or their startup to a panel of judges, and they will present them with feedback by which they can gain clarity over their idea direction, and yeah, they can start working on that. Let me begin with a small introduction of our mentors today. Let's meet the mentors. First, we have on the panel Ms. Atifa Asker. She brings an experience of almost 22 years across 3 continents, from leading marketing at Nokia across 68 countries to heading corporate enterprise at Telenor Pakistan, where she rose in revenue up to 30% over the years. Since she's back to the ecosystem, she has been a coach with NIC Islamabad and Faisalabad. She's also a board member with Taya Islamabad and venture partner at Meet Ventures. She's also a public policy consultant for Tencent across Pakistan and Bangladesh. She knows what the investors want to hear and what customers respond to and what it actually takes to build. Thank you, Asfa, so much for joining us today, and welcome to Pitch Fest episode 2. Thank you, Alina, for having me over, and thank you for that very long introduction. Thank you. All right. So next on the panel, we have Mr. Usman Arshad Khan. He is the marketing and growth director at Excelient, with a track record of scaling tech companies, bridging the gap between policy and entrepreneurship. He has moderated policy roundtables, worked extensively with women's chambers of commerce, and knows what sustainable growth looks like and how to build it. Thank you so much once again for being on the panel and your commitment in building Pakistan's startup ecosystem. And without any further ado, let me begin with the Pitch Fest. Let me just state out some ground rules for the participants so that we can avoid any sort of disruption during the pitches. Each startup will get 3 minutes to pitch their idea. Make sure you have your how, what, and who you are pitching to, and what your audience is, and the pain points you're covering. Have a clear pitch. And we are all bilingual people here. We understand English and Urdu both, so you can use any language that works for you, as long as your pitch is clear and we understand what you're saying. After that, after your pitch, mentors will give you feedback over your idea. You can ask questions and try to be respectful and engaging with your mentors and ask questions. We have 2 startups from the vertical of climate and sustainability, and 1 startup who is at the intersection of AI and healthcare. And our first startup we'll be pitching today is ProCarbon X, and the founder's name is Noor Fatma. Noor Fatma, you can start with your pitch and share your screen and start your presentation. Assalamu alaikum. I'm Noor Fatma. Walaikum assalam. Walaikum assalam. Okay. Our startup name is ProCarbon X. It's the Pakistan first AI blockchain-powered carbon credit platform. The problem that our startup will tackle are actually 3 main problems. The first one is the carbon gap, the second one is our industrial crisis, and the third one is our verification bottleneck. If you look at our carbon gap, then in Pakistan, we have around 8.26 million farms all over Pakistan. But how much they sequester carbon, how much carbon credits are generated from that area, there is no system in Pakistan. And the second, we have our export revenue at risk in the way that at the end of this year, the penalties, EU penalties, will be charged in industries of how much they stock carbon dioxide in the atmosphere. So they will be charged according to that. And the third is our verification bottleneck. The traditional verification, it takes around 12 months with $30,000 as an upfront cost. And even with this much time and with this much cost, there are still 30 to 50% error rates in the manual verification, which create the market distress. And if you compare our platform with the traditional system, then we have
our speed is 1 hour with 87 to 92% accuracy, and we charge minimal upfront cost compared to $30,000, and we have our blockchain immutable layer with AI analytics. And the solution that our platform brings, it's a 4-pillar tech framework. The first one is our AI-powered MRV system. The second one is our blockchain trust layer. The third one is it's the first farmer model and our scalability across in Pakistan and then across the area. The tech we use is 3 main. The first is AI analytics, then blockchain infrastructure, and then our compliance standards. The AI analytics we use TensorFlow neural network, which achieve 87 to 92% accuracy. We trained our AI model on 5 million NASA JD samples. On real-time processing, we use Sentinel-2 Modis landsets. And for our blockchain infrastructure layer, we use Hyperledger Fabric, the IPFS immutable data storage. And for our compliance standards, we use IPCC 2019 guidelines, Tier 2-3, and our Pakistan Carbon Market Policy 2024 guidelines. And the value proposition of our platform is for farmers, it's a new revenue stream from carbon sequestration. For industries, it's a transparent local source of high integrity carbon credit to mitigate their penalties, which saves them 30 to 40% yearly. And for Pakistan, it's the first digital infrastructure to operationalize the national carbon market policy. And the global carbon market, it restored the trust and enabled trust scale with AI-powered verification in minimum time with 87 to 92% accuracy and with transparency. If you look at our products, we have around 2 products. First is our SaaS platform, and second one is our carbon credits that are issued on our platform. Sorry, I didn't hear you properly. Nobody said anything. Please go continue. Okay, sorry. Okay, our products, we have around 2 products, our SaaS platform and our carbon credits. In our platform, we take the digital onboarding, the automated MRV workflows, and analytic dashboard. In our carbon credits, the instant issuance, lifecycle tracking, and enterprise API. If we look at the process, how from farm the credit work, then first we take our farmer on board. It's the digital enrollment via a mobile app. Then we run our AI analysis and satellite processing on the farmer land. Then the hybrid validation will take place with the help of IoT and drones. Then the blockchain carbon credits are issued on smart contract, means unique, they are traceable credits. Then they are available on our marketplace for trading purpose. Our business model is clear. It's a commission-based scaling model. Primarily, we take total around 25% transaction commission, 15% from our farmer, and 10% from our industrialist. Secondly, we can give our premium verification services like MRV. And tertiary, we can give our API access and data analytics to other companies or other users. If you look at our pricing advantage, then our pricing advantage is 30 to 40% below international rates, and the farmer get around 70 to 80% in total in credit value. And again, it's a fixed commission scaling model. If you look at our traction, then in recent months, we trained our AI model on 5 million NASA JD samples. We enabled and integrated our blockchain and Hyperledger Fabric. We aligned our methodologies with IPCC, with PCX1 to PCX4, and our MVP platform with the farmer buyer interfaces. The competitive advantage that our platform have, it's the technology. It's the first proprietary AI 1-hour verification blockchain immutable tech, and our regulatory, it's the first mover alignment with Pakistan Carbon Policy 2024 with IPCC alignment methodologies. And our network is partner with, and our data, we trained our AI model, and it's a self-improving AI with each transaction. Our next 6-month go-to-market plan is we will finalize our regulatory submission, launch farmer onboarding in several districts across Punjab, take farmers on live, sign buyer's contract, and expand further.
The impact metrics of our platform is in 3 years, the environmental impact rate will sequester around 1,000 tons sequestered annually, and the promotion of sustainable farmer practices across Pakistan, and the Pakistan contribution to global climate change goals. The economic impact in next 3 years will be around 500 million carbon market will be created, industry compliance, cost reduction, and enhanced export competitiveness. The social impact of our platform is 20,000 to 50,000 acre additional income, which saves the farmers around 40%. 50 green tech jobs will be created in rural economic development. If you look at our team, we are three founders. I am Noor Fatma. My other two founders are Muhammad Abdul Qadir and Hassan bin Munir. That's all from our side. Usman, would you like to go first or should I go first? Yeah, Atifa, please go first. Okay. Acha, I'm sorry, Noor Fatma, right? Yeah. Noor Fatma, because I'm supposed to give you very extensive feedback because my understanding was on the idea and the presentation as well. So I was noting some things down. बात सिर्फ ये है कि when you're presenting, right, you need to simplify things as much as possible. आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है वो प्रॉब्लम जो है वो आपको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बतानी चाहिए थी कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है. देन स्पेंड मोर टाइम ऑन सोल्यूशन एंड देन व्हेन यू टेलिंग योर प्रेजेंटेशन आप जब कर रहे होते हैं ना तो इट्स स्टोरी टेलिंग. सो स्टार्ट विद द प्रॉब्लम एंड देन कम दिस इज द सोल्यूशन दैट वी केम अप विद and then define your solution properly and then define the journey of your solution as well. For example, मुझे बहुत की बाद की स्लाइड्स में जाके पता चला कि अभी आप लोग किधर खड़े हुए हैं, राइट? कि अभी आपका MVP भी शायद बना हुआ नहीं है और MVP बन रहा है, जो मुझे अंडरस्टैंडिंग आई. our MVP is established, like हमारा सिस्टम प्रॉपर्ली डेवलप हो गया है. अब नाउ हम स्केल अप की तरफ जा रहे हैं. नहीं तो उस पे आपके यूजर्स आ गए हैं? नहीं, हमने अभी यूजर्स को लेना है. This is our next month plan. हाँ, क्योंकि बात सही होती है कि जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हो ना, you need to keep all of these things clear because the judges who are listening to you, उनके दिमाग में सवाल आते हैं. मेरे दिमाग में ये सारे सवाल आए थे कि करंट ट्रैक्शन क्या है, किधर पहुंचे हैं, अभी कहाँ पहुंचे हैं, आगे का क्या है, वो आपके बाद की स्लाइड्स में आया था. दूसरा आपका डिलीवरी के मैं थोड़ा सा आपको फीडबैक देना चाहूँगी कि क्या कहते हैं, यू वर रीडिंग फ्रॉम द स्लाइड्स. डोंट डू दैट. इट्स योर स्टोरी, यूर अ फाउंडर, इट्स योर आइडिया. If you're reading from the slides, that ownership of the idea doesn't come through. It seems like कि किसी और ने slides बनाई और आप पढ़ के सुना रहे हैं. अगर ये आपका idea, it's your baby, right? You're the founder. So you need to tell it. जैसे आप अपने बच्चे की story सुना रहे होते हैं कि यार this is what we did and this is what we did. That passion, that drive was not coming through in the delivery of the presentation, in my opinion. Sure, I will work on that. हाँ, तीसरी बात ये कि आपका जो है ना, because I'm giving you feedback on the sense कि जो फाउंडर जो जजेस होते हैं, there are two things that they're looking at. They're looking at the ideas. It's either the idea that excites them or it's the founders who excite them, right? So आइडिया आपका जाहिर सी बात है लेटेस्ट आइडिया है. आजकल कार्बन क्रेडिट पॉइंट्स के ऊपर काफी काम भी हो रहा है. एंड देन स्पेशली एक्सपोर्टर्स हु वांट्स टू एक्सपोर्ट इन मार्केट्स लाइक EU एंड US और बाकी सारे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जहाँ पे कंप्लायंस स्ट्रांग है, दे नीड टू कम अप विद अ सर्टेन मैकेनिज्म व्हिच इज फाइन. मगर आपका जो फाउंडर्स हैं, आपने ना अपने बारे में कुछ बताया, अपना एक पर्सनल बैकग्राउंड नहीं आपने बताया, आपने बाकी दोनों का भी नहीं बताया, आपने सिर्फ नाम बता दी कि मैं नूर फातिमा हूँ, ये XYZ हैं, ये ABC हैं, whatever. So you need to give us your background as well, because who you are. Because investor either invest in the idea, but they also look at the founders as well. They look at the founding team, कि how committed and passionate are they about their idea, and उनका background क्या है, उनका skill set क्या है, are they bringing the right things to the table in order for the idea to materialize and scale up going forward. So these are the things that you need to build in your overall storytelling, because when you're presenting, you're telling your story about your startup. You should not be reading from the slides directly. आपकी एक जो स्लाइड थी प्रोडक्ट स्वीट वाली, वो मुझे नहीं समझ आई. आपके दो प्रोडक्ट है, मुझे था आप सिर्फ कार्बन क्रेडिट्स कर रही हैं, मगर आपका दो आपने कहा था एक SaaS प्लेटफॉर्म है कार्बन क्रेडिट, तो वो मुझे नहीं समझ आई कि वो आपके दो डिफरेंट आप प्रोडक्ट्स के तौर पे बेच रही हैं या एक ही चीज है. मुझे वो चीज आपके प्रोडक्ट स्वीट वाली स्लाइड बिल्कुल नहीं समझ आई. Should I explain again?
अभी आप वैसे मुझे बता दीजिए, मगर मैं आपको इससे फीडबैक दे रही हूँ कि डिडंट कम थ्रू है, क्या है वो चीज? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। बेसिकली हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं. फर्स्ट इज अवर कार्बन क्रेडिट्स. Carbon credits that are issued from our platform. We can give it to our industrialists for export purposes. And the second product is our platform. We can give our access to users, to companies that want to buy some API access from our platform. So हाँ, तो ये चीजें these are नहीं, अच्छा, तो ये चीज नहीं, मुझे तो क्लैरिटी नहीं आई थी। आई डोंट नो उस्मान को आई है नहीं, मुझे तो नहीं बिल्कुल भी आई, बिकॉज आई वाजंट एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स एंड व्हाट वर दे डूइंग एंड हु द टारगेट ऑडियंस इज एंड व्हाट आर दे फॉर एग्जैक्टली। दूसरा ये कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि देखें, अगर आप कार्बन क्रेडिट्स की ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, सो देयर सम सॉर्ट ऑफ अ रेगुलेटरी process that you need to go through, right? Yeah. आपने अपनी and this is extremely crucial and critical for your what you're offering, because अगर आपकी वो पीछे से regulatory authentication नहीं होगी, तो why would anybody go and get a carbon credits from you अगर वो पीछे से authenticate? So that regulatory journey is a critical part of your overall process and overall your आपकी जो value proposition का भी है, तो वो आपको बताना जरूरी है कि जी मैं एक दिन सुबह सो के उठी तो मुझे प्लेटफॉर्म बनाना था, नहीं है। मैं उसको पीछे से जो रेलिवेंट अथॉरिटीज हैं, चाहे पाकिस्तान में, चाहे पाकिस्तान से बाहर, मेरी पूरी एक रेगुलेटरी जर्नी मैंने शुरू की हुई है और इन प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं, और इन लाइक हमारे इस रेगुलेटर से हमारी होगी, इससे हम आगे, ताकि वो आप एक रेगुलेटरी जर्नी, तो दैट ब्रिंग्स ऑथेंटिकेशन टू योर ओवरऑल आइडिया एज वेल, व्हिच वाज आई मुझे नहीं समझ आया कि आपके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आप इस वक्त किधर खड़ी थी। So that's just some of the feedback from my side. Over to you, Usman. Gee, thank you very much, Atif. Although you've asked all the questions, but Noor, why are you so serious? I'm You not serious. excited? No, Aren't you actually, excited? it's my neutral face. I'm not serious at all. Like, I'm just listening. Okay. अच्छा नूर, मुझे क्विकली आप जवाब दे दीजिए. सो वन, आतिफा, उन्होंने अपने एरियाज के बारे में बताया. अलीना was very kind, she gave a very good introduction, but there are two bits of my introduction that she actually missed. The first bit is that I am a certified business storyteller. So that's what I've been doing for, I run a marketing agency since 2009. That is a digital first agency. That's all that I do, right? So storytelling is one of the very key thing. And the second thing जो कि अलीना ने नहीं बताया, because probably उन्होंने LinkedIn से लिया था, वहाँ मैंने छुपाया. I'm also an entrepreneur. And guess what? One of the platforms that I've built is called Carbon Fora, जिसके लिहाज से so जब आपने पहला क्लेम किया कि पाकिस्तान फर्स्ट, so that's actually a wrong claim, because I registered my startup in 2024. Are you registered before that? No, we are registered in 2025. Yeah, so carbonfora.com, and मैं और आप मतलब मैं ये नहीं कहता 100% एक जैसा काम करते हैं, but more or less we are in the same fields. ओके, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, जैसे आतिफा ने पूछा, हु आर योर फाउंडर्स, आप मुझे अपने बारे में और बाकी तो जो साहब हैं वो क्या उनका बैकग्राउंड है? Yeah, sorry, I missed that part. I will मैं अभी बता देती हूँ. I am Noor Fatma. I completed my bachelor's and I am doing my master's right now. I completed my bachelor's in environmental sciences background, and again my master's is from environmental sciences field. Okay. And my other two founders, Muhammad Abdul Qadir. He's an horticulturist and agriculturist from Arid Agriculture University. And again, Hassan bin Munir is also an agriculturist from Arid Agriculture University. Okay, so you don't have a technical co-founder or a technical who's managing that? No. Mr. Muhammad Abdul Qadir is actually our technical co-founder. He established the business, the system by himself. So he's also the technical co-founder of our system. He's a developer. Yeah, Okay. exactly. ठीक है जी. अच्छा जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये था. सेकंड, जब आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई, तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर जो आतिफा की कंफ्यूजन थी, मुझे तो फिर भी चले मेरे पास एनवायरनमेंट की डिग्री नहीं है, बट सिंस 4 साल से मैं इसी काम पे ही लगा हुआ हूँ कि क्या करना है, तो मैं उनके कंसर्न्स जो है समझता हूँ, क्योंकि आजकल मैं भी जब फंड रेज करता हूँ तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं नॉन क्लाइमेट एरिया के, वो इसी किस्म के सवाल करते हैं. तो जो आतिफा ने आपसे रेगुलेटरी का पूछा, मैं आपसे आपकी ज़बान में पूछूंगा कि जो आपका DMRV है उसकी क्या वैलिडिटी है? How have you validated your DMRV? Are you part of Vera? Are you part of Gold Standard? Or you have reached out to them?
क्या उसका क्या स्टेक है? वेयर डू यू स्टैंड ऑन दैट? एक्चुअली हमने जब अपनी मेथोडोलॉजीज जो हमने बिल्ड की थी, तो हमने टोटली जो हमारी आईपीसीसी की गाइडलाइंस हैं और जो पाकिस्तान कार्बन क्रेडिट की गाइडलाइंस हैं, हमने उसके ऊपर अपनी मेथोडोलॉजीज बिल्ड की हैं। एंड राइट नाउ वी आर एट अ स्टेज वेयर वी आर इन कम्युनिकेशन विद वेरा कि हम अपनी मेथोडोलॉजीज जो हैं हम उनके अंडर ऐड करते हैं। मतलब कि एज यू नो कि जो कोई भी न्यू मेथोडोलॉजी आती है वेरा को वो अपने अंडर प्रोजेक्ट में ऐड करता जाता है। तो तो आपने हमारा वेरा को आउट किया है? या हमने अभी उनको रीच आउट किया। सेकेंडली हमारा प्लान है Have they कि responded, Noor? Have they सॉरी respond? Have they responded back? No, I नॉट don't think. नॉट रियली बट लाइक They, अगेन वी विल पुश। yeah, they'll respond after 4 months and they'll say sorry. इस लेवल के क्रेडिट्स को हम लोग एक्नॉलेज नहीं करते. दैट्स अ बिग चैलेंज जो कि मैं भी आजकल फेस कर रहा हूँ. सो मैं आपको, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, बट दैट्स अ बिग इशू. सो क्लाइमेट कलेक्टिव, इस किस्म के कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इसी किस्म का, बिकॉज मेरा मॉडल भी एआई और ब्लॉकचेन ड्रिवन है. आपका मैं इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर हूँ, आप लोग किसी और ब्लॉकचेन के ऊपर हैं, बट इसलिए मुझे आइडिया है. अच्छा जी, अगली बात. मुझे जो सॉरी उस्मान, आप काइंडली दोबारा बता देंगे कि आपने एक रेगुलेटरी बॉडी का मेंशन किया था अभी? गोल्ड स्टैंडर्ड ओके, या गोल्ड स्टैंडर्ड. ओके बॉडी है, गोल्ड स्टैंडर्ड. आप उसको रीच आउट करेंगे, उनका एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है. मुझे इसलिए पता है कि वी आर पार्ट ऑफ दैट पायलट प्रोजेक्ट. अगेन उस पायलट प्रोजेक्ट के अंदर जाने के लिए 1,25,000 यूरोस की फी है, तो इट्स अ बिग डील. सो आई एम ऑल्सो टॉकिंग विद मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट के हम लोग इसी बेस के ऊपर एक डीएमआरवी का जो फ्रेमवर्क है वो हम लोग को ऑथर कर लें उनके साथ. बट गवर्नमेंट्स हाउ दे ऑपरेट, उसमें बहुत डिले. अच्छा, since I'm a marketer, Noor, I have a major, and I work in the climate space as well. I have a major issue with your positioning as well. आप पहले टाइम से आपने मुझे और आतिफा को वाव करने के लिए आपने कहा कि you're building a carbon credit platform. You're not building a carbon credit platform. What I can see is that you're building a carbon credit offsetting platform. ओके ठीक है, बिकॉज आप कार्बन क्रेडिट्स जो आपके डीएमआरवी से वेरीफाई होकर जब आपके मार्केट प्लेस के अंदर आते हैं, फार्मर्स के कार्बन क्रेडिट्स, तो आप वो क्रेडिट्स लेकर जाती हो इंडस्ट्री के पास, और इंडस्ट्री को कहती हो कि भाई जो तुम्हारी ईएसजी के अंदर जो तुमने अपनी रिपोर्ट की हुई है इमिशंस, उसको तुम इन कार्बन क्रेडिट्स के साथ ऑफसेट कर लो. यही है ना आपका बिजनेस? या एग्जैक्टली. Okay. So I personally think that you should say that you're a carbon credits offsetting platform. उससे क्लैरिटी मुझे भी आ जाती, आत्मा को भी आ जाती. तो एंड तक हम लोग यही सोचते रहे कि एंड में आप आके एक ऐसा मार्केट प्लेस बना रही हो जिसके अंदर कोई भी बंदा आएगा और आपकी जो मार्केट प्लेस होगी वो वॉलंटरी मार्केट के साथ लिंक्ड होएगी. मैं एक फार्मर हूँ, मैंने जमीन से कितने कार्बन क्रेडिट्स मंगवाए हैं, मैं वॉलंटरी मार्केट में उसको जाके बेचूंगा और मैं डॉलर्स कमा लूंगा. ये आपका, हमें जो व्यू मिला, आई डोंट नो आतिफा आपका भी यही व्यू था, बट मुझे ये वाला व्यू मिला. उस लिहाज से तो आई थिंक आपको थोड़ी सी पोजीशनिंग को बेहतर कर लो, इसको ऑफसेटिंग के ऊपर ले आओ तो इट विल मेक मोर सेंस. ओके, एक्चुअली आई वांट टू ऐड वन थिंग कि हमारे जो हमारे यूजर्स हैं, लाइक देयर मेन हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बट अगेन उसने जाना वॉलंटरी मार्केट में ही है. लाइक कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हम सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को सेल करें या स्पेसिफिक हम एक्सपोर्टर्स को सेल करें, स्पेसिफिक हम ईएसजी कॉम्प्लायंस को सेल करें. मेजर यूजर्स हमारे वो बनेंगे इन फ्यूचर बिकॉज दे वुड बाय टेक्निकली. So Noor, again, ये जो आपने भी ये बात बोली है, मेरे और आतिफा के सामने तो चल जाएगी, कुछ सेवी इन्वेस्टर होएगा वो आपको पकड़ लेगा इस बात के ऊपर भी. यू हैव टू बी वेरी क्लियर. आपका जो की कस्टमर है दैट इज द एक्सपोर्टर एंड दैट्स इट. फॉरगेट अबाउट अदर्स. दे आर द की कस्टमर्स. आई एग्री वहीं पर. सो वो ऑफसेटिंग का ये प्लेटफॉर्म है, तो इसको थोड़ा सा वो कर लो. फिर अगली चीज जो मेरी थी वो ये थी कि जो आपकी मेथोडोलॉजी है वो उसमें आईओटी और ड्रोन टेक्नोलॉजी की सेंट्रिसिटी भी है, राइट? यस. तो मुझे आप बताओ कि आपका टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल क्या है? यू हैव द ड्रोन्स एंड यू हैव दिस टेक्नोलॉजी अवेलेबल. हाउ आर यू डूइंग दैट, और यू आर गेटिंग इट फ्रॉम अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर ऑफ दिस इंफॉर्मेशन? We have our drones and IoT for a pilot project, but our main aim is when we tackle the
big project, we will buy new systems because the area would be more. So we have the technology for pilot scale, but not for a scale up. So we will. ओके सो मेरी आपने अभी जो अपना जो आगे का बताया हुआ था ना, उसमें आपने लिखा था 100 फार्मर्स को आपने ऑनबोर्ड करना है। ऑनबोर्ड करना है। तो अगर आप 100 फार्मर्स को ऑनबोर्ड करती हो तो जो आपके पास पायलट टेक्नोलॉजी है उसके साथ आप उनको ऑनबोर्ड कर सकती हो? हमारा our main plan is to when we onboard our 150 to 100 farmers, we will take the drones or we will buy the drones and the IoT systems. So what you mean to say is कि with the current technology that you have, आपके पास वो capability है to onboard 100 farmers. Yeah, for 50 to 100 farmers for a pilot scale. You can do that. Okay, so इसलिए मैं आपको suggest ये करूँगा कि जो आपकी slide है ना, जहाँ पर आप अपना current state बताते हो, तो वहाँ पर एक चीज़ होती है, लिख लो आप अपने पास, वो कहते हैं technology readiness level, TRL. ठीक है, ये 9 स्टेज का टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल होता है, हर स्टेज डिफरेंट होती है, तो वहां पर कहीं पे मेंशन कर दो कि मैं इस वक्त TRL 1 2 3 4 5 6 कहां पर खड़ी हुई हूँ, ताकि ये वाला सवाल किसी को पूछना ना पड़े। Sure, thank you, I will add that. जी, एंड लास्टली आतिफा की उसी बात को मैं सेकंड करूंगा। मैं अगेन आपके दर्द को इसलिए समझता हूँ कि आपकी ही इंडस्ट्री के अंदर हूँ और कोई तकरीबन पिछले 5 महीने से आई हैव बीन मीटिंग इन्वेस्टर्स। आई एम श्योर जो आपका रेज आप कर रही हैं वो प्री सीड लेवल का रेज कर रही है, राइट? आर यू रेजिंग फंड्स? आर यू प्लानिंग फंड्स? Yeah, we are planning to get the funds. सो जब आप प्री सीड लेवल का रेज करते हैं ना नूर, तो उसके अंदर जो इन्वेस्टर होता है ना, अगर आपका कोई प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है कि आप चैट जीपीटी का कोई नई चीज ले आते हैं, इन्वेस्टर कहता है वाह ये तो चैट जीपीटी को खत्म कर देगा, उससे वो एक्साइट हो जाता है। बट मेरी अपने एक्सपीरियंस में ये हो रहा है कि जो प्री सीड लेवल के ऊपर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, दे यूजुअली इन्वेस्ट इन द फाउंडर्स। तो वही आतिफा वाली स्टोरी जो है कि जो आपने 3 फाउंडर्स हैं, आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, आप इन्वायरमेंटल डिग्रीज हैं आपके पास, किसी के पास हॉर्टिकल्चर की डिग्रीज है, कोई बंदा टेक का वो है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपने अपने डेक से हाइड कर ली। ठीक है, और लास्ट बिट ऑफ इट मुझे ये था कि जो स्लाइड्स की जो 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 प्रेप है ना, वो थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। मुझे ना इट वाज अ बिट हेवायर, मतलब कुछ चीजें इधर मुझे देखनी पड़ती थी, फिर मैं एकदम उड़ता था उधर। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो एलिवेटर पिच का कॉन्सेप्ट होता है, 45 सेकंड होते हैं इन्वेस्टर के जहन में अपनी जगह बनाने के लिए। हम तो चलें आपके साथ ही हैं, पाकिस्तानी हैं, हम तो आपको बता सकते हैं, बट इन्वेस्टर 30 सेकंड में कहता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जाओ। राइट, तो कोशिश करें कि जो आपकी स्लाइड की प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट आई में रखें, उसको इतना घुमाने की कि एक वाला बॉक्स ऊपर आ रहा है, दूसरा इधर से सीधा आ रहा है, आर्चेस में लिखने की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे लोग, जिस तरह मेरा आई हैव एन आई साइट इशू, सो मेरे लिए अगर आर्च में ना यूँ देखना ही बहुत मुश्किल था, तो मैंने इसलिए ऐनक पहन ली क्योंकि मुझे कुछ चीजें नजर भी नहीं आ रही थी। सो दैट्स इट। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आई मीन दैट्स अ वेरी एक्साइटिंग एरिया। मुझे लोग कहते हैं कि आज जो मुझे जानते हैं, आज से 3 साल पहले मेरी दाढ़ी का एक बाल भी सफेद नहीं था, तो आज मेरी दाढ़ी का आधी ज्यादा सफेद हो गई है। सो इट इज अ टफ सेक्टर बट वेरी प्रॉमिसिंग सेक्टर। अगर आप इसके अंदर एक टैम सैम सॉम की स्लाइड डाल देती कि टोटल कार्बन मार्केट्स की 120 बिलियन की मार्केट है, तो आई एम श्योर आतिफा भी Actually, I removed those slides because we have a 3-minute time. So मुझे लगा कि हमें 5 to 6 minutes लग जाएंगे. So I removed those slides right now. सो नूर, चले, मुझे तो क्लाइमेट का था ना एक्सपीरियंस, जिस तरह आतिफा के लिए नहीं था, तो आतिफा इफ शी वुड हैव बीन एन इन्वेस्टर, शी वुड हैव बीन मोर एक्साइटेड टू सी अच्छा इतनी बड़ी मार्केट है, स्टफ लाइक दैट। सो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। बाकी थैंक यू वेरी मच। So I just wanted to add on, मतलब communication का रूल होता है, you need to keep it simple and stupid, right? चाहे आपके सामने क्लाइमेट के इन्वेस्टर बैठे हों या मेरी तरह नॉन क्लाइमेट के, जितना आप सिंप्लीफाई करके चीजों को बताएंगी ना, उतनी ही आपकी कहानी अगलों को सही से समझ आएगी। क्योंकि आपकी सोल्यूशन की भी एम्बिग्विटी थी, आपके प्रॉब्लम भी आपने, हमारे यहाँ नॉर्मली क्योंकि आई डू अ लॉट ऑफ जजिंग, राइट, तो प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे यहाँ, मैंने सारे स्टार्टअप्स को देखा है कि अगर एज एन एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं कि 3 मिनट थे आपके पास, वो 3 मिनट में से 1 मिनट तो सिर्फ प्रॉब्लम को ही डिफाइन करने में लगा देते हैं।
बाकी भी 2 मिनट में वो जल्दी जल्दी बाकी स्लाइडों को कर। प्रॉब्लम, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता जो जजेस ने जिंदगी में नहीं सुना हुआ। ये कोई ऐसा आसमानी प्रॉब्लम नहीं है कि जो पहले मतलब आप कोई नया प्रॉब्लम लेकर आए जो कभी किसी ने सुना ही ना हो। तो प्रॉब्लम्स को मैक्सिमम सिंपल तरीके से टू द पॉइंट आपने 20 से, अगर आपके 3 मिनट है, 20 से 30 सेकंड में उसको बताएं कि ये प्रॉब्लम है, ये मैं इसका, और उसको साइड पे करें। देन टॉक अबाउट योर सोल्यूशन, देन बिकम एक्साइटेड एंड पैशनेट अबाउट योर सोल्यूशन कि मैं क्यों कर रही हूँ, मेरी ये डिग्री है, मैंने ये देखा तो आई फेल्ट दैट देयर इज अ नीड फॉर इट, फिर हमने ये बनाया, अभी हम यहाँ तक पहुंच गए, हम इसको आगे इस तरह लेके चलेंगे। Bring that excitement into your delivery, because if you don't bring that excitement and that passion into your delivery, investor कहेगा यार ये ठंडी हुई है, जैसे उन्होंने पूछा आपसे कि आप why aren't you smiling, because you were very serious. So you need to come across as very passionate, because as I said, when you're founders and your startups, it's your baby, right? So you need to be passionate about your, जिनके नए नए बच्चे पैदा होते हैं बड़े एक्साइटेड होते हैं, ये देखो हमारे बच्चे कितने क्यूट से लेके फिर रहे होते हैं। So for you, your startup and your idea is like that. So own it. That ownership needs to come in your delivery. You understand? So don't read from the slides, speak from the heart. Slides में information होती है just to move. देखो मैं हमेशा क्योंकि मैं भी communications की expert हूँ, slides में information आप सिर्फ डालते हैं to move your story forward. Slide is not your story. You are your story. आपके slide में वो information होगी that जो visually आप you want the people to remember and walk away with, मगर story आपने बतानी है, slides नहीं बताएंगे. So either you let the slide speak for you or you speak for the slides. You make a decision when you're presenting. Yeah, sure. Okay? I hope that helps in the future, inshallah. Inshallah. Thank you, Noor. Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you so much for the pitch, Noor Fatma, and thank you, judges. Let's move to the second pitch for today. We have the next startup name is Eco Muhafiz by Anusha Zia. Anusha, you can start presenting. All right, I'm going to share my screen. Assalamu alaikum, everyone. Walaikum Welcome, assalam. you are audible. Okay. All right. So 3 months ago, Islamabad, one of the most beautiful capitals in the world, lost 30 to 40,000 trees, and no one saw it coming. No alert, no system, no data, just gone. And across the Pakistan, this was the capital. Across the Pakistan, the timber mafia cuts freely, and no one's watching. And the result? Every 19 minutes, Pakistan loses its 1 forest hectare. Now we're left with just 2 to 3% of the total natural forest, and while the global average is around 30%. So you see, the problem is huge. With that, I'm Anusha Zia. I'm the founder and CEO of Eco Muhafiz, and we're building Pakistan's first IoT monitoring and carbon verification platform. Okay, so moving on. All right. So what's the real problem? The real problem is that we have no eyes on the forest. Forest loss goes undetected for weeks, and by the time authorities show up, the trees are already gone. Just like we saw in Islamabad 3 months ago, companies are claiming carbon credits with zero independent verification. There is no way to prove those credits are real. Billions have been spent on programs like the 10 billion tree tsunami, but there is no centralized system to track whether those trees actually survived or not. And the agencies like EPA or CDA, they have no digital tools to monitor anything. They are working completely blind. So moving on to the solution. All right. So how do we fix this? 4 layers, 1 platform. First, our IoT sensors on the ground. We place our devices directly in the forest that runs audio classification, which is basically machine learning trained to recognize chainsaws, logging trucks, and tree felling sounds. So the moment something's detected, instant alert fires. Each device covers about 200 meters, which is like monitoring about 10 to 20 hectares, and then it runs on low power networks, which is built for remote areas. And if this device were like in northern areas, authorities would have known in seconds, not weeks. Second, satellites from the sky. Yes, our GIS dashboard plugs into the Google Earth Engine, pulls satellite imagery, and then it runs change detection algorithms like NDVI to track where the forest cover is shrinking, where it's growing, where the hotspots are. So like when we get like both views, like sensors on the ground and satellites from above. So you see sky and soil working together. Third, the carbon engine.
We measure how much carbon a forest is actually absorbing using the biomass models, and then we validate it against Vera and gold standard. So every ton of the carbon dioxide captured becomes a verified tradable carbon credit backed by the real sensor and satellite data. It's not like just paperwork. Fourth, our ESG dashboards. Yes, very important. So companies can track their scope 1 and scope 2 emissions. They can see their carbon offset progress, and they could like actually generate reports that would satisfy regulators and investors. Moving on to the market opportunity. Yes. All right. So Pakistan's forest monitoring alone is $120 million. South Asia Forest Tech is $1.4 billion, and the global carbon verification, $50 billion and even growing fast. So you see the demand for the environmental accountability is exploding, but Pakistan unfortunately has nothing. Now I'm going to discuss the business model. All right. Okay. So the first segment of our B2G business to government. So what we do is like we provide forest departments and agencies like MOCC and EPA with our IoT devices for real-time forest monitoring and the live enforcement dashboard, so they could actually see what's happening and then they can act on it, and our compliance reporting for regulators and emission certification. The second segment, our B2B corporates and banks, publicly listed companies in Pakistan, as you know, like nowadays they are increasingly required to show their environmental impact, right? So what we do is like we give them that ESG compliance tools and carbon credit verification. So like their offsets are actually credible. They could do like the net zero tracking and using the dashboard, and everything is displayed there. The IoT devices, it's like also like shown kitni accuracy aayi and everything to, you know, they could actually protect their own forestation efforts. And because like this is very important because many banks and corporates nowadays, they are planting trees, but they have no way to monitor like if they would actually survive or not. अब अगर हम बात करते हैं वेन्यू की, then our SaaS subscriptions, it's like 1 million rupees per year per corporate client for the platform access. Our IoT device sales is like 30,000 rupees per unit, which covers, as I said before, 200-meter radius, and a usage-based analytics, which basically it's like a platform which is where we like sell data services and insights to government for the research policy showcasing like हमने क्या कुछ किया. इसके अलावा जो हमारा data set है हम उसको भी देते हैं, देंगे for like government. They could use it for like policy making, research. So you know you could show the global level पे कि पाकिस्तान की क्या on ground efforts है. Moving on, the traction and validation. Yes. Okay. So our prototype is built. The GIS and IoT architecture is integrated. I'm sorry. Please go ahead. Did anyone? No, Alright. nobody's So- saying it. All right. So our prototype is built. The GIS and IoT architecture is integrated. The device coverage is validated. Right now, we are like in active discussions with Ministry of Climate Change for pilot testing in Margala Hills. And apart from that, we are aligning with Baker Tilly Pakistan on Vera and Gold Standard certification. We have shortlisted 10 KSE listed companies for our enterprise pipeline. And right now, we are like in the phase 3, which is like our live pilot, which is going to launch this month. अब अगर मैं बात करूं अपनी टीम की, तो I am Anusha Zia. I'm the founder and CEO. I am pursuing my bachelor's here from NUST, from science in bioinformatics. And Huzaifa Sarfraz, he also did his bachelor's from NUST, and he's our chief product officer. Zalad Salim he's doing his bachelor's from SEEKS. He's a CS student and he's like chief ML engineer for this project. Aksa Sarfraz is our co-founder. She's handling the coordination and partnerships. अनिका गुलरेज जो हैं ये हमारी environmental engineer हैं, इन्होंने NUST से ही environmental engineering में bachelor's किया था. And Azhar Shahir, he is our IoT specialist. He basically works in NSTP as well. Works in NSTP and he helped with our hardware and IoT systems. And this is it. Usman, this time around, why don't you go first? Chale, I'll go first. So, Anusha, you started off with the story, so I think that's great. Extremely relatable. Islamabad, Drakh kat rahe hain, and you know, especially I'm so sorry to interrupt you, but Anusha, can you stop sharing the screen, please? Okay. All right.
Okay, perfect. Thank you. No problem. So started off with the story, Islamabad story. So uski relatability मेरे साथ डरे. Although I don't live in Islamabad now, but I was born and raised in Islamabad, so directly relate किया मेरे साथ. So I got immediately. That's the power of stories. You immediately get hooked on to it. So पहले मैं good things बता देता हूँ. Your वो जो आतिफा ने बड़ी मजेदार बात बोली थी, keep it simple and stupid. Your presentation was based on that, very clear, no dark backgrounds, white background के ऊपर लिखा हुआ था. Although I really thought कि जो आपका सब headings का font का color है, that was a bit too light. So maybe अगर आप उसको डार्क कर लें तो वो, या ब्लैक कर दें तो ब्लैक वर्क्स, आपको उसको ज्यादा ग्रे करने की जरूरत है नहीं. Alright. सो दिस इज समथिंग. दूसरा जो आपकी टैम सैम सॉम वाली स्लाइड थी, वो आपने सॉम सैम टैम के तरीके से प्रिंट की. हाँ, वो इस तरह चल रही है ना. नहीं, लेकिन आपने बोला भी पहले, आपने सॉम बताया, सैम बताया. ये क्यों होता है? देखिए उसकी लॉजिक को समझें. जब टैम जो होता है, दिस इज यूजुअली द बिगेस्ट नंबर. सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि जो आपकी ऑडियंस होती है, आप उसको वाओ करना चाहते हैं. $50 बिलियन मार्केट फॉर वो, ठीक है. फिर सैम जो है एंड देन सॉम जो है, आपने सॉम को पाकिस्तान की कंप्लीट फॉरेस्ट मार्केट के साथ लिंक कर दिया था, $120 मिलियन की. सो माय सजेशन वुड बी के सॉम इज द ऑब्टेनेबल मार्केट, जो कि आप ऑब्टेन कर सकती हैं. सो इस $120 मिलियन का 100% आप ऑब्टेन नहीं कर सकती. सो जितने आपके पास वो हैं, तो इसको आपको मजीद थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की जरूरत पड़ेगी. सो आई थिंक दोज नंबर्स आर एन इशू. आपका जो था, आई लव द फैक्ट कि आपने अपना रेवेन्यू मॉडल बताया. दैट इज रियली गुड, इट वर्क्स फेयरली वेल. बट उसकी जो डाउन साइड होती है, वो वही होती है जो मेरा अगला सवाल है. आपने IoT डिवाइस सेल्स का लिखा हुआ है. आर यू एन इन्वेंटर? आर यू मेकिंग द IoTs योरसेल्फ और यू रीसेलिंग दोस? बेसिकली जो हमारी IoT डिवाइस है, एंड उसमें जो ML मॉडल है सारा, वो मैंने बनाया. आई एम लाइक द ML इंजीनियर अलोंग विद जलाल सलीम. IoT डिवाइस इज रेडी. इसमें फिलहाल हमारे पास कुछ LoRaWAN के लाइसेंसिंग के इश्यूज आ रहे हैं, एंड हमारी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट से बात चल रही है. वी गॉट द परमिशन एंड लाइक वी आर रेडी टू डिप्लॉय इन मर्टिला हिल्स. No, my question again is कि जो IoT डिवाइस है, वो आप लोग खुद इन्वेंट कर रहे हैं और you are getting it from some place? We are inventing it ourselves. हम जो some 30,000 machines. rupees की, जो 30,000 की आप बेच रहे हैं, वो आप लोग खुद इन्वेंट कर रहे हैं? Yes. ओके. सो फिर पोजीशनिंग के लिहाज से कुछ चीज़ों के ऊपर आई वुड रियली वांट कि आप कुछ प्रोप्राइटरी के वर्ड्स यूज कर लें. इफ इट इज़ योर ओन इन्वेंशन, सो दैट्स अ वेरी सॉलिड वर्ड. इन्वेस्टर्स लव इट जब उनको ये लगता है कि जी वी आर बिल्डिंग प्रोप्राइटरी हार्डवेयर फॉर डूइंग दिस. इन्वेस्टर्स लव दिस फैक्ट और उनको फौरन ये हिट करती है, अच्छा यार हम पेटेंटिंग के ऊपर जाएंगे, ये है वो है. So, other than the nature of tech investment, ये चीज़ लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है. तो मेरा ख्याल में आप उसकी थोड़ी सी पोजीशनिंग को बेहतर कर लेंगे तो वो भी बेहतर हो जाएगा. आपने जो ESG रिपोर्टिंग का मॉड्यूल था, माय लास्ट क्वेश्चन, उसमें यू आर मेंशनिंग स्कोप 1 एंड स्कोप 2. ये जो 1 मिलियन का पर कंपनी आप चार्ज कर रहे हैं रेवेन्यू अपने अपने क्लाइंट से, उसके अंदर ये जो स्कोप 1 और स्कोप टू ट्रैक करने का मॉड्यूल आप बिल्ट इन उनको दे रहे हैं? Yes. ओके. सो व्हाट अबाउट, व्हाई नॉट, आर यू नॉट इवन कंसिडरिंग स्कोप 3? आप कुछ उसमें मतलब आप वो जो टियर 3 की जो वो है, वो आप बिल्कुल कर ही नहीं रहे हैं, या फ्यूचर का प्लान है, या क्या सीन है? फ्यूचर का प्लान है. दिस इज लाइक फ्यूचर में हमने इसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स करनी है. तो लाइक फॉर नाउ आई वाज जस्ट शोइंग ऑफ एवरीथिंग, स्कोप 1 एंड स्कोप 2. अगर आप ये चीज मेंशन कर दो ना उसी स्लाइड के ऊपर किसी जगह के ऊपर, बिकॉज लेट्स एक्सेप्ट इट, जो आपके को फाउंडर ESG वाली उनको आइडिया होगा. सबसे वैल्यूएबल जो जो रिपोर्टिंग है, वो तो स्कोप 3 की रिपोर्टिंग है. स्कोप 1 एंड स्कोप 2 इज फेयरली बेसिक, राइट? एंड ऑल्सो आई लव द फैक्ट कि आपने वेरा और गोल्ड स्टैंडर्ड को मेंशन किया था. एंड आई लव द फैक्ट कि आपने उस कंसल्टेंट का भी नाम लिख दिया जो आपको वेरा और उसके साथ थ्रू करा रहा है. सो दैट्स एक्चुअली रियली गुड. बेस्ट ऑफ लक. Thank you very much. Thank you very much. Gee, Anisha, again, I'm going to start with the positive. I liked the way you delivered your presentation. You started with the story. So you
got the audience attention from the beginning. शुरू से ही आप जो है ना आपने उनको अपने ऊपर attract कर लिया. But again, the same thing I'm gonna say, आपने problem पे बहुत ज़्यादा time लगाया. You need to simplify the problem that you're solving. ठीक है? तो निवी का ऐसा कोई problem नहीं है जो नहीं पता. Problem पे आप कम time लगाएं. Spend more time on your solution, on your journey of your solution. जो तो मैंने पिछली startup को भी यही feedback दिया था. आप बैठी हुई थी. दूसरा मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी ये दीजिए कि मुझे आपने प्रोडक्ट में दो चीज़ें जो मुझे समझ आई हैं वो हैं. एक तो ये कि आप कह रहे हैं कि आप मॉनिटरिंग कर रही हैं थ्रू IoT डिवाइसेस एंड थ्रू GIS इलीगल डिफॉरेस्टेशन की. एक तो ये कर रही हैं आप, राइट? सेकंड आप कर रही हैं ESG रिपोर्टिंग, कार्बन रिपोर्टिंग, या क्या कर रही हैं? सेकंड पार्ट जो है आपका बेसिकली जो कंपनीज है दे कुड चेक के उनका स्कोप 1 स्कोप 2 कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, कार्बन क्रेडिट्स एंड एवरीथिंग, सो एवरीथिंग विल बी डिस्प्लेड ऑन द डैशबोर्ड कि उनके कितने ऑफसेट्स एंड एवरीथिंग. हाँ, क्योंकि मुझे सिर्फ ये थोड़ा सा क्लैरिटी देखें. आई फील के तो मतलब आप अभी मॉनिटरिंग से शुरू कर रही हैं, आप दोनों चीजें साथ साथ शुरू करेंगे? हमारी दोनों चीजें साथ साथ ही है. हमारी IoT डिवाइस रेडी है, डैशबोर्ड भी रेडी है. वी आर बेसिकली मेकिंग अ यूनिफाइड इंजन फॉर दिस, लाइक इन सब चीजों का वन सॉल्यूशन. ठीक है. Again, traction so far was something that came later in the slides. जब आप अपना solution define कर रहे होते हैं ना, फिर आप ये कहते हैं कि मैं ये करूंगी, मैं ये कर, because you using मैं कर रही हूँ, मैं कर, like it's not just the founders, they don't realize if it's MVP ready नहीं है, तो then you should be talking in the future tense, right? कि we will be doing this, like we are doing this, हम ये दे रहे हैं, हम इतने पैसों का दे, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आप अभी दे रहे हैं. But when you came, आपके 4-5 स्लाइड्स में जब आप फाइनली ट्रैक्शन के फ्लाइट में आई तो तब पता चला कि अभी आप कुछ नहीं दे रही हैं, अभी आप सिर्फ MVP बिल्ड कर रही हैं. तो अपनी ट्रैक्शन की स्लाइड को ऑलवेज मूव इट नेक्स्ट टू योर सॉल्यूशन सो दैट द जजेस नो देयर एंड देन कि सॉल्यूशन क्या है, उसकी जर्नी क्या है, अभी इस वक्त किस पॉइंट पे खड़ा है. उसके बाद देन यू कैन मूव ऑन टू द प्राइसिंग मॉडल्स एंड मोनेटाइजेशन एंड बिजनेस मॉडल्स एंड एवरीथिंग एल्स. बिकॉज उस पर ना पॉइंट पे हम फंस जाते हैं, क्योंकि when you guys are speaking, you naturally speak in present tense that we're charging 30,000. You're not. You will be charging 30,000 when you start monetizing, right? You're not doing it right now. So that's a misconception that builds in the mind of the judges. The problem ये होती है कि जब उनके पास Q&A का राउंड आता है, Q&A का राउंड भी लिमिटेड टाइम के लिए होता है, तो वो बेसिक चीजें ही आपसे पूछने में लगा देते हैं, rather than trying to get meaningful information out of you to make an informed decision about overall health of the startup and the founders as well. पीछे बैकग्राउंड नॉइज आ रही है बहुत ज्यादा. दूसरा ये कि मुझे आपके नंबर्स से काफी इख्तिलाफ आ रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग. जी, मुझे आपके प्राइसिंग के नंबर्स से काफ़ी इख्तिलाफ आ रहा है, क्योंकि आपने इस प्राइसिंग की मार्केट वैलिडेशन की है? Yes. किसके पास गई आप? प्राइसिंग की मार्केट वैलिडेशन किसके पास? Basically, who is willing to pay that amount of money, that much amount of money? Basically, जितनी भी मार्केटिंग वगैरह थी, that is basically built our team member Aqsa Sarfaraz. So she was handling the business side of things. And आपका क्वेश्चन क्या था? 1 minute. Can you like repeat that? I feel like I didn't get it. आपकी जो प्राइसिंग है, I feel the pricing is too high. आपने इस प्राइसिंग की मार्केट वैलिडेशन की है? Do you know what a market validation is? आप मार्केट वैलिडेशन का पता है आपको कि मार्केट वैलिडेशन क्या होता है? मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज बीच में कट रही है बहुत ज्यादा. उस्मान, आपको सही से आ रही है? सही से आ रही है जी मुझे तो आवाज. मैंने खुद नहीं की, इट्स लाइक विद माय टीम मेंबर्स. तो बेसिकली हमने आपको आइडिया है मार्केट वैलिडेशन क्या होती है? They would buy it or not, and did you check the price point validation as well कि क्या आप इस कीमत पे खरीदेंगे नहीं? क्योंकि आपने 30,000 की एक IoT डिवाइस बताई है और आप कह रही हैं कि वो IoT डिवाइस सिर्फ 200 मीटर कवर करती है. तो forests are huge area, so that's a huge investment in terms of monetary financial investment. तो कौन इतना पैसा देगा? आपने जाके वैलिडेशन प्राइस की मुझे लगता है आपको करना बहुत जरूरी है. आपकी सास की जो आपकी मेंबरशिप है वो 10 लाख रुपए है पूरे साल की. You need to look at your numbers, because मुझे आपके पूरे मोनेटाइजेशन के ऊपर बहुत सीरियस कंसर्न है. आपकी IoT की डिवाइस 30,000 की है, आप कह रही हैं उसकी रेंज 200 मीटर है, फॉरेस्ट ह्यूज एरिया होता है, तो उसमें कौन
मैं बताती हूँ, आप इसको ये भी तो देखो, जो 30,000 पर रुपीज डिवाइस है, ठीक है, और जो 10-20 हेक्टर्स कवर कर रहा है, तो आप इसका एक पॉजिटिव एडवांटेज ये भी तो देखो कि लाइक इट्स फार चीपर देन मैनुअल पेट्रोल्स। गवर्नमेंट जो होती है लाख लाख दे रही है एक एरिया कवर करने के लिए, मैनुअल पेट्रोलिंग के लिए, उससे तो सस्ती पड़ी है, और उससे तो अपराध को जब चले जाते हैं सारे रेंजर्स, तो आपकी इलीगल एक्टिविटी तो होती है उस तरह की। बच्चे, मेरा आपसे सिर्फ एक एडवाइस है, क्योंकि आपको आवाज़ सही नहीं आ रही, प्लीज़ अपनी प्राइस पॉइंट की वैलिडेशन प्रॉपर करवा लें, बिकॉज मुझे ये है कि यू नीड टू गो एंड टॉक टू द पीपल दैट यू थिंक विल पे दिस अमाउंट एंड आस्क देम इफ दे विल बी विलिंग टू पे दिस अमाउंट, क्योंकि वो एक IoT डिवाइस तो नहीं लगेगी ना, मल्टीपल लगेगी, सो इट्स अ ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर whoever wants to put it, whether it's a government of Pakistan और प्राइवेट, जिसको भी आप जाएंगी। तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अपने प्राइस पॉइंट की मार्केट वैलिडेशन कर, आइडिया की नहीं, प्राइस पॉइंट्स की प्लीज करवा लीजिए। All right, I would definitely would. Thank you so much, Anushka, for your pitch and the feedback. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। So, I'm working on this AI SaaS idea. I named it Cleany. अभी जो है थोड़ा सा मार्केट रिसर्च वगैरह हमने की है, टॉक टू इनिशियल यूजर्स, और तो लीना आप थोड़ा सा आगे चलाएं स्लाइड्स को। सो बेसिकली आइडिया इज दैट क्लिनिक्स जो हैं करंटली जो ऑपरेट होते हैं ना, बेसिकली अपॉइंटमेंट बेस्ड क्लिनिक्स, वो अपॉइंटमेंट्स के लिए डिपेंडेंट होते हैं डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर, लाइक ओला डॉग हो गया, मरहम हो गया, दीज टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म्स। और इंटरनली वो उनके जो ऑपरेशंस रन हो रहे होते हैं, तो वो फ़ोन कॉल्स के ऊपर भी अपॉइंटमेंट बुक कर रहे होते हैं, और फिर ऑन पेपर उन्होंने मैनेज करना है चीज़ों को जो है, और बार बार रिमाइंडर्स देने हैं पेशेंट्स को जो है ना फ़ोन कॉल के ऊपर। तो पेशेंट्स बेसिकली क्या करते हैं कि अक्सर क्लिनिक्स का रेवेन्यू लॉस भी होता है ड्यू टू नो शोज रेशो, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है क्लिनिक्स में, मतलब पेशेंट नो शो करते हैं। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स जो सॉफ्टवेयर्स हैं जिस तरह EHR वगैरह हैं, वो कंप्लीट मतलब उनमें पेशेंट का डाटा डालना है अपने हर चीज़, तो वो कॉम्प्लेक्स है। तो क्लिनिक्स जो है उनसे बचते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स को ये स्मॉल क्लिनिक्स यूज़ नहीं करते। और अपॉइंटमेंट्स के लिए मतलब मिस भी हो जाती हैं, अक्सर बिजी लाइन होती है, तो इस वजह से अपॉइंटमेंट मिस भी होती हैं। तो हमने फिर आइडिया सोचा कि हम क्यों ना एक मोबाइल ऐप बेस्ड और वेब ऐप बेस्ड एक सॉफ्टवेयर बनाएं, जो कि क्लिनिक साइड भी हो और पेशेंट साइड पे AI एजेंट हो, उसका जो अपॉइंटमेंट एजेंट हो बेसिकली। सो पेशेंट क्या करेंगे, पेशेंट जो है जस्ट क्लिनिक के नंबर के ऊपर उन्होंने मैसेज किया, तो जो एजेंट होगा वो उनको जो है सिस्टम के अंदर से जो स्लॉट्स अवेलेबल होंगी वो स्लॉट्स शो करेगा पेशेंट को, उनका नेम वगैरह ले लेगा, और एक प्री टोकन पेमेंट जो है ना वो इंस्टेंट उनको एक लिंक भेजेगा, तो उसके थ्रू वो PKR 100 to 200 वो टोकन पेमेंट जो है वहाँ से पेशेंट पे करेगा, और वो फ़ौरन जो है स्लॉट लॉक हो जाएगी और अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। और फिर सिस्टम जो है वो रिसेप्शनिस्ट को शो कर देगा कि ये स्लॉट बुक है, पेशेंट का नेम वगैरह वो एजेंट ले चुका होगा, तो वहाँ पे वो अपॉइंटमेंट भी बुक हो जाएगी। और टोकन बेसिकली ऐड करने का मकसद ये था कि जो है ताकि नो शो रेशो जो है वो कम हो जाए क्लिनिक्स के अंदर, और पेशेंट जो है वो लॉक हो जाए। और डॉक्टर वाली साइड पे ये है कि डॉक्टर की भी प्रोफाइल होगी, तो डॉक्टर को जो उनकी स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट्स होंगी वो उनको अपने प्रोफाइल के अंदर शो हो जाएंगी डेली। और रिसेप्शनिस्ट विल बी एबल टू बुक अपॉइंटमेंट्स मैनुअली ऑल्सो, मतलब फ़ोन कॉल वगैरह आती है उनको जिस तरह, तो वो सिस्टम के अंदर पेशेंट का नेम और वो डाल के उनको सीधा उनकी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, तो पेमेंट लिंक जो है वो टोकन का उनके WhatsApp पे चला जाएगा पेशेंट के, तो पेशेंट वहाँ से उसको कंफर्म कर सकता है अपॉइंटमेंट को, और रिमाइंडर्स भी इसी तरह। और एक इसके अंदर मार्केटिंग फीचर ये मतलब इवेंचुअली डालने का ये इसलिए मैंने फीचर सोचा था कि जिस तरह पेशेंट की लिस्ट बनती जाएगी सिस्टम के अंदर, तो जो क्लिनिक्स होंगे वो उनको रीटारगेट करने के लिए तो मार्केटिंग फीचर भी होगा कि वो वहाँ से एक मैसेज बना के तो सिस्टम से उनको कैंपेन चला सकें। और जो डॉक्टर की कंसल्टेशन फ़ी होगी वो ऑन साइट, मतलब पेशेंट जब विजिट करेगा तो वो उनको पे कर सकता है। तो क्लिनिक का रेवेन्यू मॉडल बेसिकली ये होगा कि जो सिस्टम हम प्रोवाइड करेंगे क्लिनिक्स को, सॉफ्टवेयर सिस्टम, उसका SaaS फी होगी मंथली,
और जो प्री टोकन हो पेमेंट होगी उसको या तो हम क्लिनिक के साथ स्प्लिट करेंगे या फिर वो स्मॉल सी जो फी होगी वो हमारी जो है सर्विस फी होगी पर अपॉइंटमेंट। और वो पेशेंट का जो डाटा हम स्वास्थ्य के अंदर ये फीचर भी डालेंगे कि जो पेशेंट्स आएंगे ना तो उनका नेम और जो उन्होंने चेकअप वगैरह किया है, ठीक है, उसकी डिटेल वगैरह वो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट सिंपली उनकी वो डायग्नोसिस वगैरह वो डाल सकेगा वहाँ पे, तो पेशेंट की प्रोफाइल बन जाएगी खुद ही। Moaz, are you done with your presentation? यस मैम, बाकी जो सर क्वेश्चन वगैरह करना है तो Okay, okay. Let's move to the mentors. मुआज मुझे बताएं आपका आइडिया। यस मैम, अभी तो आइडिया है, मतलब कि इसको थोड़ा सा रिफाइन किया है मैंने। पहले एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम प्रॉपर जो जिसमें आप मल्टी लोकेशन क्लिनिक्स भी मैनेज कर सकते हैं, इस तरह का मैंने प्रोटोटाइप सा बनाया था। और बाकी वो आइडिया मैंने पिच किया था NIC के ना प्रीवियस कोहॉर्ट में। तो मैं इंटरव्यू स्टेज तक गया था, लेकिन मैंने फिर डॉक्टर से बात की जो सीनियर डॉक्टर हैं, क्लिनिक रन भी कर रहे हैं और इंडस्ट्री के अंदर हैं, सॉफ्टवेयर उनको पिच होते भी रहते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि बेसिकली जिस तरह व्हाट्सएप ने कम्युनिकेशन को सॉल्व किया है ना, और ऊपर ने ये राइड हेलिंग सर्विस को, तो आप भी इसी तरह क्लिनिक्स के अंदर जो मेन है ना मसला वो अपॉइंटमेंट्स का बहुत क्योस है। तो आप ये कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर ना डेवलप करें, मोबाइल ऐप बेस्ड और व्हाट्सएप बेस्ड एजेंट टाइप सिस्टम आप डेवलप कर लें, तो जो बिल्कुल सिंपल UI हो, उसकी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, तो वो हम प्रेफर करेंगे एज अ डॉक्टर। तो अभी आपका ये आइडिया स्टेज पे ही है। जी जी, मैंने वैलिडेट किया है, मतलब कि, लेकिन अभी डॉक्टर से कुछ पूछा वही था। पूछा आपने इसकी कोई मार्केट रिसर्च की है, मार्केट वैलिडेशन इस आइडिया की है? कितने डॉक्टर से, कितने क्लिनिक से आपने बात की है, कितने शहरों में आपने जाके बात की है? क्योंकि क्लिनिक्स वगैरह से मार्केट से information लेंगे, जितना आपको मार्केट से इंसाइट्स आएगी उतना ही आप इसको बेहतर क्योंकि अभी ऑलरेडी काफी ज्यादा जो है हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जो कि बहुत सारे क्लिनिक्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। जो छोटे जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, दे हैव कंप्लीट पूरा उनका मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, उसके एप्स भी हैं। आपने कोई वहाँ पे टेस्ट कराया, कुछ कराया, उनके एप्स पे रिजल्ट आ जाता है, सब चीजें हो जाती है, अपॉइंटमेंट सब चीजें वहां से हो जाती है। जो छोटे क्लिनिक्स हैं उनका वॉल्यूम इतना ज्यादा होता नहीं है कि उनका जो स्टाफ है वो व्हाट्सएप पे वो क्वेरीज को, उनके लिए वो क्वेरीज अनमैनेजेबल हो जाए। तो मैं ये चाह रही थी कि आपको फीडबैक में ये देना चाह रही हूँ कि आइडिया जो है आपका है, अभी चूंकि आइडिया स्टेज पे, गो एंड टॉक to as many doctors, as many clinics as you can, and not just in one city, क्योंकि आप ये एक सिटी के लिए नहीं बिल्ड कर रहे। Tier 1, Tier 2 हर सिटीज में जाके कि आप जितना इंसाइट, जितना उनसे पूछेंगे तो उतना ही आप इसको बेहतर, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारी चीजें इस तरह की सिमिलर अवेलेबल हैं। आप, मुझे समझ आ रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आप एजेंटिक AI करना चाह रहे हैं फॉर ये क्लिनिक बुकिंग्स के लिए, विच इज फाइन एज वेल। एजेंटिक AI आप व्हाट्सएप के ऊपर बिल्ड करके कर सकते हैं, मगर then you need to see who your target audience is, because idea is only as good as your ability to monetize it and people willing to pay for it. So people will only will pay for it if you build something that works for them. और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जाके मार्केट रिसर्च करें, लोगों से बात करें, रेलिवेंट लोगों से मुख्तलिफ शहरों में बात करें, आपको मुख्तलिफ चीज़ें आपके सामने आएंगी और फिर आप इसको सही से बिल्ड करें। ये मेरा आपको मशवरा है। उस्मान, ओवर टू यू। जी, थैंक यू वेरी मच आतिफा। सो मेरा मुआज, एक जो बहुत बड़ा फैक्टर होता है ना, जो मैंने अपनी जर्नी में भी देखा है और वैसे भी उसमें देखा है, कि जो इन्वेस्टर और जूरीज होते हैं ना, वो एक अपने ज़हनों में ये क्वेश्चन कई दफ़ा तो वो मुंह पे बोल भी देते हैं कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर अदर्स टू कॉपी योर आइडिया, राइट। सो मैं अभी, आप जब बोल रहे थे और आपने खुद ही ओला डॉक और मरहम का नाम ले लिया, तो मैंने साथ ही ना बैठ के गूगल के ऊपर सर्च किया, तो डू यू नो कि दोनों के दोनों, ओला डॉक भी मरहम भी, दोनों के दोनों अपने एजेंटिक AI के ऊपर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। जी जी, They have the first movers advantage. They have a huge customer base. उनकी brand recognition भी मौजूद है। So आप मैं भी वही बात बोलूंगा जो आतिफा ने बोली है। मुझे लगता है कि जब तक आपका सिस्टम रेडी होएगा, ओला डॉक और मरहम दोनों का एजेंटिक AI वहाँ पे खड़ा हो जाएगा, और आई डोंट थिंक आपको कोई एज सच स्पेस मिलेगी इसको करने के लिए। अब when I say this, इसमें दो इम्पोर्टेंट आई वुड से वर्जन्स हैं।
एक तो है B2C वर्जन, जिस B2C वर्जन के अंदर आप एक आम पेशेंट को वो कर रहे हैं। बट आई पर्सनली थिंक कि अगर, ये मेरा अपना व्यू है, मैं मेरी कोई वैलिडेशन नहीं है, बट मैं अपने पेन पॉइंट को देख के आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप आइडिया स्टेज के ऊपर हो। थिंक ऑफ इट कि अगर आप ये इसी किस्म का सोल्यूशन सिर्फ B2B कस्टमर्स के लिए बना दो, जो कि कॉर्पोरेट्स के कस्टमर्स हैं और ये हैं जिनके पास इंश्योरेंस जो उनको कंपनी प्रोवाइड करती है। सो मे बी यू कैन टॉक टू पीपल लाइक क्या नाम है उनका, स्मार्ट क्राउड, या कोई इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में भी उसके लिए चल सकता है। बिकॉज पर्सनली मुझे नहीं लगता कि B2C मार्केट के अंदर जब तक आपका सिस्टम रेडी होएगा, फॉर एग्जांपल मरहम मैं यूज़ करता हूँ, मरहम इज़ ऑलरेडी इंटीग्रेटेड विद द व्हाट्सएप, वहाँ पर आपको मैसेज आ जाता है। मरहम का UI UX इज़ फेयरली सिंपल, आपको सिर्फ डॉक्टर को सर्च करते हैं, वो आपके सामने आ जाता है, रिव्यूज़ वहीं पे लिखे हुए आ जाते हैं। तो जो चॉइस ऑफ सेलेक्टिंग अ डॉक्टर है वो डिफिकल्ट नहीं है। तो मेरी आपको जो सजेशन होएगी वो यही होएगी कि इस वेरिएबल पे जरूर देखो कि हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर योर कंपेटिटर्स टू कॉपी यू। ठीक है, अगर ये एजेंटिक AI, तो अब वो वाला टाइम रहा नहीं है, मतलब 2-3 वीक्स के अंदर लोग AI एजेंट अपने खड़े कर लेते हैं। तो ये जो बड़े बड़े जायंट्स हैं आपके बिजनेस के अंदर, ओला डॉक और मरहम, वो ऐसा क्यों नहीं करेंगे? मतलब या उनके लिए करना मुश्किल है? उनके पास कस्टमर बेस भी है, उनके पास थोड़े बहुत पैसे भी हैं। सो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। बाकी बेस्ट ऑफ लक। All right, thank you so much. I think we are done with the pitches for today. And thank you, Atfa and Usman, for joining us. It was a very nice session with you. And I think the startups will make a lot out of the information that you guys have given. And with that being said, I'm going to end the session now. Thank you so much. Thank you. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. For the people who are watching us, Pitchfest is more than just about pitching. It is about bringing the right people to the right audience, and so that they can make the most of it.